Greetings, students. Welcome back to our English class. And today we will start with a new chapter, The Address by Marga Minko. Now, who was Marga Minko? She was a Dutch journalist and author. Who was she? A Dutch journalist and an author. She was born on March 31st, 1920 in the village of Ginneken in the southwest of Netherlands. Okay, children. Now, why do we study? Always, when I make my videos and I tell you about the writer, why do we tell about a writer? What is the most significant about it? The most significant about this is, children, that we come to know about the author's thinking. Okay, हमें सोच का पता चलता है किस व्यू का था, क्या क्या करना था, क्या नहीं करना था, राइट? उनके व्यूज़ क्या थे, कब वो बॉर्न हुए थे, राइट? Now, the address by Marga Minko is indeed an inspiring story which sheds an adequate amount of light on the importance of letting things go. Letting things go means चीज़ों को छोड़ देना. It further reiterates that both past and future are illusions and all we have with us is the present. The story clearly brings to light the fact that holding on the past can be an extremely painful exercise. It goes without saying that forgetting the moments and the experience that torment you can be really daunting task. But once you accept your past wholeheartedly, you tend to get a big weight off your back. The author, despite being attached to the memories of her past, had the courage to leave them behind in order to make a fresh beginning. Now, see the address Marga Minko. This is a short story in a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. Now, let us start with the story. Now, what does it say? Okay, let us start with the story. Now, do you still know me? I asked. I means the writer. The women looked at me searchingly because अभी तो उसने बोला था, किसने? राइटर ने, कि तुम मुझे जानते हो. ठीक है, तो उसने सर्चिंगली देखा कि यार मैं इसे जानती हूँ कि नहीं जानती हूँ. शी हैड ओपनड अ डोर अ चिंक का मतलब होता है नैरो ओपनिंग. जब हम किसी को देखते हैं, जब कोई हमारे घर आता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा खोलते हैं ना देखने के लिए कि कौन है, तो वो ही है चिंक, राइट? I came closer and stood on the step. अब ये जो पिक्चर है बेटा, ये घर के बाहर का है, राइट? नो, आई डोंट नो यू. ओके, तो वो जो दूसरी लेडी थी जो देख रही थी, वो बोलती है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ. आई डोंट नो यू. आई एम मिसेस एस's डॉटर. तो उसने बोला, आई एम मिसेस एस's डॉटर. किसकी डॉटर थी? राइटर मिसेस एस. शी हेल्ड अ हैंड on the door as though she wanted to prevent it opening any further. जैसी वो ये बात सुनती है, वो क्या करती, और ज़्यादा छोटा करके अपना हाथ रख देती ताकि वो एंटर ना करे. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. तो वो keep staring मतलब घूरती रही मुझे चुपचाप. Perhaps I was mistaken. वो बोलती कि perhaps मुझे लगा मैं गलत एड्रेस पे आ चुकी हूँ. I thought perhaps it isn't her. ठीक है, वो जिसको सर्च कर रही थी वो सोच रही थी मैं इनको नहीं सर्च कर रही थी. I had seen her only once, fleetingly. तो उसने fleetingly मतलब for a very short time. ठीक है, तो क्या बोल रही है राइटर कि मैंने इनको देखा था, बट किस टाइम के लिए? बहुत छोटे टाइम के लिए. एंड दैट वॉज ईयर्स अगो. और वो भी कब? बहुत साल पहले. It was most probably that I had rung the wrong bell. So she's like,
इट वॉज मोस्ट प्रॉबेबली दैट आई हैड रंग दी रॉन्ग बेल. वो सोच रही है मैं गलत घर में आ चुकी हूँ और मैंने घंटी जो बजाई गलत बजाई है. द women let go to the door. Sorry, the women let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. तब क्या हुआ, जैसे वो थोड़ा सा इधर को हुई तो थोड़ा साइड में हुई तो राइटर ने देखा कि उसने उसकी मदर की ग्रीन निटेड कार्डिगन पहनना है. व्हाट इज ग्रीन निटेड कार्डिगन? स्वेटर पहनी है ग्रीन कलर की जो उसकी मदर की थी. द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग. और बहुत बार अगर हम एक चीज़ को वॉश करते हैं, बहुत बार यूज़ करते हैं चिल्ड्रन, तो वो पेल हो जाती है. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. उसने ये देखा कि वो मेरे कार्डिगन को बार बार देख रही थी. ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो चुपके से डोर के पीछे छुप जाती हैं, कहीं वो क्या करे, इस कार्डिगन को रिकग्नाइज ना करे. कार्डिगन का मतलब स्वेटर. बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. अब राइटर को लगा कि हाँ, अब मुझे लग गया था कि मैं एक राइट प्लेस पे हूँ. वेल यू न्यू माई मदर, आई सेड. मतलब ओके, तो तुम मेरी मदर को जानती थी. हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन. आई थॉट नो वन हैड कम बैक. उसने बोला तुम वापस आ रही हो क्या? मुझे लगता है कि कोई नहीं वापस आएगा. ठीक है, तो फिर क्या बोलती है राइटर, क्या बोलती है? ओनली मी. नाउ चिल्ड्रन, a door opened and closed in the passage behind me. A musty का मतलब here is the word musty means rancid या stale, बासी जिसे बोलेंगे. स्मेल emerged मतलब एकदम से वो स्मेल आई बासी की. I regret I cannot do anything for you. तो वो जो लेडी थी डोर पे, उसने बोला मुझे माफ़ करना जी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ. I've come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. तो उसने कि मैं स्पेशली ट्रेन से होकर आपके पास आई हूँ. ठीक है, मुझे आपसे क्या करनी है, बात करनी है. ठीक है. It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you. I can't see you another time. तो बोले मेरे लिए convenient नहीं, मैं तुझसे बात ही नहीं कर सकती. She nodded cautiously, closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उन्हें फटाफट क्या करा, अपना दरवाज़ा बंद करा. ठीक है, ताकि कोई और डिस्टर्ब ना हो. I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Now, what is the children? What is the meaning of the bay here? Bay is actually the protruding मतलब जो जैसे बड़े बड़े विलास होते हैं ना चिल्ड्रन, तो क्या होते हैं उनमें बे होता है जहाँ पर खिड़की की तरफ थोड़ा बाहर को आता है. राइट, दैट इज अ बे. इट इज समथिंग लाइक इट इज चिल्ड्रन, इट इज समथिंग लाइक दिस. इट इज लाइक दिस, ऐसे करके बे होता है. यहाँ पर विंडो होती है और यहाँ थोड़ा प्रोट्रूडिंग होता है, बाकी घर उसके पीछे की तरफ होता है. राइट चिल्ड्रन, तो इट इज़ लाइक अ बे. ठीक है, विंडो मूव्ड, तो वहाँ पर कुछ हलचलाट आई. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. तो वहाँ पर वो बोले कि कोई अंदर से पूछ रहा था कौन था और क्या पूछ रहा था. बट उस women ने क्या बोला, कुछ नहीं था, कोई नहीं था. I looked at the name plate again. अब उसने क्या करा, नेम प्लेट होती है ना, वो फिर से देखी. ठीक है. Darling, it said in black letters on white enamel. Enamel बताऊँ क्या होता है चिल्ड्रन? एक स्क्वायर टाइप का होता है जिसमें नंबर प्लेट पे नाम लिखी जाती है, शाइनी तरीके का होता है. राइट. एंड ऑन दी जैम्ब, JAMB, जैम्ब, ऑन दी जैम्ब, दिस इज जैम्ब. व्हाट इज दिस? जैम्ब. साइड पोस्ट ऑफ द विंडो, फायरप्लेस और डोरवे, a bit higher than the number 46. अब उसके ऊपर क्या था, जैम्प के ऊपर on the and on the jump a bit higher the number 46 was there. ठीक है. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war.
Now, which war they are talking about? They are talking about the World War, children. They are talking about the Second World War. Okay. I was home for a few days, and it struck me immediately that something or other about the room had changed. I missed various things. My mother was surprised. I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Dorling. तो जैसी वो बात कर रही है वॉर टाइम की, आई वॉज होम, वो कहीं घर आई थी और उसने कुछ चीज़ें मिस करते हुए देखी। तो फिर उनकी मदर ने बताया कि मिसेस डॉर्लिंग थी, ठीक है। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड अक्वेंटेंस। अक्वेंटेंस मीन्स स्ट्रेंज और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हियर इज द वर्ड अक्वेंटेंस। अक्वेंटेंस मीन्स what do you call it, stranger, जान पहचान होती है जिसकी, familiarize या knowing of my mother whom she hadn't seen for years, whom अब उन्होंने बहुत साल तक उनको नहीं देखा। she had suddenly turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly, अब वो बार बार उनके घर आती थी, ठीक है। every time she leaves here she takes something home with her, said my mother, और हमेशा वो कुछ ना कुछ उनके घर से लेके जाती थी। थोड़े टाइम पहले की बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है, राइटर कर रही। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो एंड देन द एंटीक प्लेट्स भी लेके जाती थी, दैट हंग देयर। शी हैड ट्रबल लगिंग मतलब वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ लगिंग बेटा, जब बहुत चीज़ें भारी हो जाती हैं, कैरी अ हैवी ऑब्जेक्ट विद ग्रेट एफर्ट, जब हम बहुत मुश्किल से सामान उठाते हैं ना, तो क्या होता है, हम एकदम से उसको ठीक से उठा नहीं पाते। दोज लार्ज वासेस एंड आई एम वरिड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक। क्रिक मीन्स क्रैम्प, इतना भारी था कि उसका कमर भी दर्द कर देता था, ठीक है। क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, बहुत फीलिंग सॉरी, ठीक है, तरस खाना किसी पर, फीलिंग सिंपथी, ठीक है। तो बोलती थी हाय कितनी मुश्किल से उठा रही है। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड टू आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मी herself. She even insisted. She wanted to save all my nice thing. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. उसने बोला वॉर चल रही है, तो इसने मुझे क्या करा, इसने मुझे बोला कि मैं क्या करती हूँ, मैं ये सामान ले लेती हूँ, ठीक है, बिकॉज दे वर Jew, ठीक है। आपको पता है ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर उनको मारना चाह रहा था, ठीक है। तो वो बोलती कि नहीं, मैं तुम्हारा सामान बहुत सेफली रखूँगी, ठीक है। हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, as if that necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. उसने बोला है कि हैव यू अग्रीड विद हर, तुमने सोच समझ के लिया है, तुमने हाँ बोला है कि तुम क्या करोगी, कि तुम ये सामान रखोगी, तुमने पूछा है, उन्होंने तुमसे भी पूछा है। तो बोलते अगर as if that necessary, my mother cried, it would be simply an insult to talk like that, and think about the risk she's running each time she goes out of our door with full suitcase or bag. बोले देखो कितना रिस्क हो सकता है उसके लिए, कि वो पूरा दिन हमारे घर आती है, इतना सामान लेके जाती, किसी ने पकड़ लिया तो बहुत ज़्यादा एक टाइप ऑफ रिस्क हो जाएगा, चिल्ड्रन, राइट। Now, my mother seemed to notice that I was not entirely convinced. मतलब राइटर नहीं चाहती थी कि वो उनका सामान लेके जाए, राइट। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली मीन्स क्रिटिकली, ठीक है, क्रिटिकली, कॉशियसली या डेप्रिसिएटिंगली, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उसके बाद हमने कभी इसके बारे में बात नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way, क्योंकि वो ये सारी बातें सोच रही थी कि क्या क्या होता था, कैसे वो हमारा सामान लेके आई थी। I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. तो वो बचपन की बात करी कि मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ से
जाते हुए बहुत दुख लग रहा था। ये सारे घर उसके जान पहचान के थे, ठीक है, और बट वो क्या कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि वो क्या करे, यहाँ से जाए, ठीक है, उसको हर्ट हो रहा था कि वो इतनी सारी पुरानी चीज़ें अपनी देख रही थी। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. ठीक है, ट्रेन में उसने किसको देखा, मिसेस डॉलिंग को, जो वो घर में थी, ठीक है। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. Broad back? मिसेस डॉलिंग की कैरेक्टर बता रहे हैं. देर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, शी बीकेंड टू मी, सिग्नल करना, वो बोलते ये देखो, पॉइंट करते ना उंगली से, ये देखो ये कौन है, मेरी डॉटर है. द वुमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, अपने कोट में छुपाते हुए, ठीक है, उसने क्या करा, एक सूटकेस उठाया. शी वॉर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट. डज शी लिव far away? I asked, seeing the difficult. She had gone out to the house with the heavy suitcase. In Marconi Street, said my mother, number 46. Remember that? I had remembered it, but I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, liberation means liberty of freeing. जब सब कुछ ठीक हो गया था, I was absolutely not interested in all that stored stuff. And naturally, I was also rather afraid of it, afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. तो उसने बोला, मेरे को डर लग रहा था कि मैं उन चीज़ों को देखूंगी तो मुझे सब कुछ याद आएगा, ठीक है, विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन until they were put back into their place again, which had endured all those years because they were things, okay. Endured means suffered, vain means hopeless, ठीक है. Now, but gradually everything became more normal again. Bread was getting to be lighter color. Now, what is the meaning of bread was getting to be lighter color? Now, children, bread was getting to be lighter color का मतलब है, bread was getting lighter indicates that life was getting slowly normally after the world war. Now क्या होता है children कि bread जो वॉर से अफेक्टेड थे, ठीक है, जो दुश्मन थे, उन जो जूस थे, उनको क्या देते थे, होल ग्रेन ब्रेड का ब्रेड नहीं देते थे, उन्हें बहुत डार्क कलर का हस्क होते हैं ना, हस्क क्या होती है, जो सीड होती है उसके बाहर का ब्रेड देते थे, उसका बना हुआ ब्रेड देते थे, तो कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन था, डार्क ब्राउन था. अब जैसे वॉर ख़त्म हुआ तो उनको क्या मिलने लगी, लाइट कलर की ब्रेड जो सभी खाते थे, ठीक है. तो दैट मीन्स यूरोप हैड टू फेस मैक्सिमम डेविस्टेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर. तो ठीक है, तो फिगरेटिवली उसको बोला गया है कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, प्लस मैंने उसको सिग्निफिकेंट बता दिया कि हाथ से बना हुआ ब्रेड वो खाते थे, ठीक है, पहले जब वॉर थी. जैसी वॉर ख़त्म हुई उनको भी होल ग्रेन आटा का ब्रेड खाने को मिला. There was a bed you could sleep in unthreatened. Unthreatened मतलब क्योंकि वॉर था, कई बार सोल्जर्स आते जाते थे, तो you could sleep without unthreatened, ठीक है. और रूम विद अ व्यू, यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे क्या होता था कि लोग मारना पीटना मरना, उसका अब क्या है, व्यू चेंज हो गया था. एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस. आई वॉन्टेड टू सी. Now what did wanted to see, touch and remember. राइटर बोल रहे कि मुझे ना वो चीज़ें देखनी थी. कौन सी चीज़ें, जो राइटर के पास थी, ठीक है, जो उस मिसेस डॉर्लिंग के पास थी, उनको रिमेंबर करना था, उनको टच करना था. क्यों? क्योंकि वो उसकी मदर की थी. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन, वेन मीन्स होपलेस, कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी, टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम. ठीक है चिल्ड्रन, अब वो जाते हैं, उनको जाना है सेकेंड टाइम. कहाँ पर? मिसेस डॉर्लिंग के घर, ठीक है. किसको? मिसेस एस की डॉटर को. नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर to me. I asked her if her mother was at home. No, she said to me, my mother's doing an errand. Errand is work. ठीक है, वो किसी काम से बाहर गई हैं, ठीक है. No matter, I said, I'll wait for. उसने बोला कोई बात नहीं, I'll wait for your mother. Okay children.
Now she said, I followed the girl along the passage, an old fashioned iron hanuk. What is Hanuk? See, you'll see the Feast of Light, a brew festival. A Feast of Lights means Hanuk children एक type of candle stand होता था. ठीक है, कैंडल होल्डर होता था, वो 3 साइज में होता था, राइट, लाइक दिस. इट वाज लाइक समवॉट लाइक दिस. ठीक है, wait, I'll just draw it properly. It was somewhat like this. हियर 1 2 3 और इसके ऊपर कैंडल्स रखी जाती थी, राइट. दिस वॉज काइंड ऑफ अ हैनुक एंड दिस वॉज द होल्डर. ऐसा था. ओके, इट वॉज अ हैनुक. Now, a candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more circumference than a single candle. बहुत बड़ा था, इसीलिए कभी ये किसकी चीज़ें हैं, ये मिसेस एस की डॉटर, मिसेस एस को बिलोंग करते हैं. ठीक है चिल्ड्रन. ओके, now we will see everything, we will read more in the next video. Thank you children.